Hi dear students, welcome to business studies class. So in last class we had completely discussed about how the online transaction can be carried out. So after that in last video we are already discussed about what are the risks arises within the e-business. Okay. So in every business risk arises, in traditional business also risk are there, but what is the form of risk for the traditional business? It is different, and form of risks are different for the e-business. Okay, so completely we are discussed within the last class. Okay, so in this video we are going to discuss about what are the resources required for the successful implementation of e-business. So for successful of e-business, what are the things required, what are the resources required for the successful implementation of e-business? So total 6 resources are required for successful implementation of e-business. So first one is a computer hardware system, internet connection, technically qualified staff, computerized system of receiving payment, well-designed website, and last one telecommunication services. Okay. So why these resources are? Without these resources we can't run our business, we can't run our e-business, because this is the important thing. Within the name of e-business indicate E stand for electronic device, or within that you should have internet facility. Then and then only you can complete or you can successful within the e-business. Okay. So basically two resources are required. First, that is one electronic device should be required, and within that internet facility. These two resources are main important resources for the successful implementation of e-business. So for according to exam point of view, this is also important question. So they are going to ask the question, what are the resources required for successful implementation of e-business. Okay. So लास्ट क्लास हमने देखा था कि बिजनेस में रिस्क कौन से आते हैं. ट्रेडिशनल बिजनेस में भी रिस्क आते हैं, बट उसका फॉर्म डिफरेंट है. ई बिजनेस में भी रिस्क आते हैं, तो कौन से रिस्क आते हैं? मे बी ऑर्डर डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग, डिफॉल्ट इन पेमेंट, डिफॉल्ट इन ऑर्डर गिविंग, और ट्रांजेक्शन रिस्क आ सकता है. नहीं तो हैकिंग, वायरस, दैट इज अ डेटा, जब भी आपका डेटा प्रोवाइड होता है उसके ऊपर रिस्क आ सकता है. डेटा लीक हो सकता है. ओके. सो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, रिस्क, उसकी वजह से रिस्क बिजनेस में लॉसेस होने के चांसेस फेस कर सकते हैं. और थेफ्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सो जो भी आपने बनाया है उसका आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं लिया तो दूसरा कोई तो आपके ऊपर हक जमा सकता है. दैट इज द थेफ्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वी आर डिस्कस्ड विद इन द लास्ट क्लास. सो अनदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस. सो कौन सी चीज़ें लगती है ई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ई बिजनेस सक्सेस होने के लिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन, दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर. सो इनिशियली आई टोल्ड दैट फॉर ई बिजनेस वी शुड रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सो ई बिजनेस के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए. यहाँ पे हम कंप्यूटर सिस्टम और यू कैन राइट मोबाइल फोन्स. ओके. सो ई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर और लैपटॉप, और यू कैन कॉल मोबाइल फोन्स ऑल्सो. This type of device we should have for our business, e-business, because so rather than the mobile phones we should have a computer system, because mobile phones have with a less capacity. Nowadays mobile phones also have the more capacity, more storage space will be there, but rather than that it is a prefer we can use the computer system for e-business. So to start, otherwise one should have a computer system with the proper speed, technology, capacity, and handle volume, big volume of your business. So computer system किसके लिए चाहिए? एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए बिजनेस के लिए. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे आप कंप्यूटर ले सकते हो, नहीं तो मोबाइल फोन्स ले सकते हो, नहीं तो लैपटॉप ले सकते हो. तो मोबाइल फोन में क्या प्रॉब्लम होता है? मोबाइल फोन से भी आप आपका बिजनेस रन कर सकते हो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द स्टोरेज. वहाँ पे स्टोरेज थोड़ा कम रहेगा इफ यू कंपेयर विद द लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम. सो स्टोरेज के लिए, यानी बड़ा बिजनेस है तो बड़ा डेटा होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, सो वो आपको स्टोर करने के लिए
मोस्टली कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, आपके बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा रहता है, तो उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम इट इज सुटेबल। सो कंप्यूटर सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, इट शुड बी विद द प्रॉपर स्पीड, स्पीड उसका अच्छा होना चाहिए, जल्दी जल्दी काम खत्म होना चाहिए। ये तो टेक्नोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया तो यू कैन रन योर बिजनेस, यू कैन कंप्लीट योर वर्क विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एंड कैपेसिटी यानी स्टोरेज कैपेसिटी आपके सिस्टम की भी अच्छी होनी चाहिए। सो दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज द बेसिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द ई बिजनेस। सो सेकेंड है इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली। सो दीज टू रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस बोल रहे हैं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना ही होना चाहिए, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन्स, ओके। और उसके अंदर इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए, खाली एक कंप्यूटर का डब्बा है दैट इज नॉट यूज, यू हैव टू बी, अदरवाइज देयर शुड बी अ इंटरनेट कनेक्शन, देयर शुड बी अ इंटरनेट फैसिलिटी। सो इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए। सो इंटरनेट कनेक्शन without it business can't run because it can't conduct e-commerce activity. So what are to run your business? See, business is there means commerce activities are there, is it right? So business में भी दो टाइप आते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग आएगा, नहीं तो एक ट्रेडिंग आएगा। सो जो भी ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं, व्यापार जो बोलते हैं, वो इट टोटली कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ओके। सो within commerce, within trade two things are there, one is industry and commerce things are there. So industry में क्या होता है, प्रोडक्शन। सो जो भी प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट बनाना है वो रियल केसेस में मशीनरी यूज करके ही हमें प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। अभी क्लॉथ है, इंटरनेट के ऊपर क्लॉथ यानी कि साड़ी हम सेल कर सकते हैं, हम बिक सकते हैं, बट इंटरनेट के ऊपर ये साड़ी बना नहीं सकते। This is a chalk piece. We can sell this chalk piece through internet, but we can't produce this chalk piece through internet. What I am telling are getting? So जो भी प्रोडक्ट है, अभी एक बोर्ड है, so एक बोर्ड हम इंटरनेट के ऊपर सेल कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर बिक सकते हैं, बट इंटरनेट के ऊपर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट बना नहीं सकते। मोबाइल फोन्स इंटरनेट के ऊपर हम सेल कर सकते हैं, बट इंटरनेट के माध्यम से हम वो बना नहीं सकते, यानी कि प्रोडक्शन और रियल केसेस में आमने सामने मशीनरी के ऊपर काम करके ही प्रोडक्शन बना सकते हैं, ओके। बट जो भी प्रोडक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट आता है, वी कैन सेल दैट प्रोडक्ट, दैट मीन्स वी कैन कंडक्ट ई-कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू विद हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। सो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हम जो भी प्रोडक्ट है उसका ई-कॉमर्स एक्टिविटी यानी कि परचेजिंग करना, नहीं तो सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, ओके, प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग, सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ओके। सो वी कैन डू दिस थिंग्स विथ हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो जो भी ई-कॉमर्स एक्टिविटीज है, सेलिंग है, ओके, सेलिंग है, और अदरवाइज यू कैन गो फॉर द बैंकिंग ट्रांजेक्शन में भी देयर, okay, communication things may be there. So these things we can run with help of internet connection. So खाली computer system होने से कुछ भी use नहीं है, we should have a proper internet connection to run our business, to complete e-commerce activities. So next one, technically qualified staff, it is also must. So these two things are very important, without this we can't run forward, okay. So technically qualified staff, so only if you have computer system and internet connection, but user of that things it is not qualified technically, what is the use of computer system and internet connection? So you should have a technically qualified staff, well qualified, capable workforce should be there to handle computer and internet, okay. So आपके पास खाली एक कंप्यूटर का डब्बा है, उसमें इंटरनेट फैसिलिटी है, तो इंटरनेट फैसिलिटी कैसी भी रहेगी, मोबाइल फोन है तो आप इंटरनेट का रिचार्ज कर सकते हो, नहीं तो ब्रॉडबैंड कैसे भी आप इंटरनेट कनेक्शन लैन के थ्रू बाय एनी वे यू कैन यूज द इंटरनेट कनेक्शन, ओके। सो आफ्टर दैट टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है और कंप्यूटर सिस्टम है वो है उतना ही यूज नहीं। सो टू ऑपरेट योर बिजनेस, to conduct the e-commerce activity, you should have qualified
qualified staff. You should have qualified workforce. So कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, बट वो उसका यूज करने के लिए आपके पास वर्कर्स ही नहीं है, क्वालिफाइड वर्कर्स ही नहीं। यू हैव वर्कर, आपके पास काम करने वाले लोग हैं, बट उनको कंप्यूटर सिस्टम हैंडल नहीं करना आता, इंटरनेट का यूज कैसे करना है, उसको यूज करके बिजनेस कैसे चलाना है, वो उनको पता ही नहीं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ योर वर्कफोर्स? सो आपका जो भी काम करने वाले लोग हैं वी कैन कॉल एज अ वर्कफोर्स। आपके एम्प्लॉय जो है वी कैन कॉल एज अ वर्कफोर्स। सो इफ दे आर नॉट क्वालिफाइड, उनको कंप्यूटर हैंडल नहीं करना आता, उनको इंटरनेट हैंडल नहीं करना आता, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? सो उसके लिए जो भी आपके पास काम करने वाले लोग हैं दे मस्ट स्किल्ड वर्कर शुड बी देयर। तो उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनको इंटरनेट का यूज करने के लिए आना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करने के लिए आना चाहिए। सो इट्स अ वेल क्वालिफाइड स्टाफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर who are expert within the software things, so that person should be required for your business. So next one is so after that you must have computerized system of receiving payment. So business must have efficient system to receive a payment as well as for the security of your data for goods sold. So जो भी आप ई बिजनेस कर रहे हो, सो देयर विल बी द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी विल बी देयर, ओके, सो देयर विल बी अ ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट, ओके, टू रिसीव दैट पेमेंट यू शुड हैव अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, यू शुड हैव अ पर्टिकुलर सिस्टम विद इन योर कंप्यूटर सिस्टम। सो जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो आपको आपके पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर यूज करके जो भी आपके कस्टमर आपको पेमेंट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए ना। So they are doing a payment through debit or credit cards. They are doing a payment through digital cash, otherwise they are doing a payment with the net banking or mobile banking. So हाथ से पैसा, that is a cash on delivery दे रहे तो डायरेक्टली आपके हाथ में पैसा आएगा, no problem. But if otherwise, if they are using the different way of payment, that in that case you should have a particular system, which computerized system to receive that payment. So आपको पता होना चाहिए ना, उन्होंने आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में इतना पैसा डाला है वो पता होना चाहिए। हर बार आप बैंक में जाके वो चेक नहीं कर सकते। सो आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, थ्रू दैट यू कैन गेट अ मैसेज ऑफ पेमेंट। सो उसके थ्रू आपको पता लग सकता है कि इन्होंने इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर सिस्टम होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज अ वेल डिजाइन्ड वेबसाइट। ऑब्वियसली टू रन योर बिजनेस वेबसाइट इज मस्ट, बिकॉज हाउ द कस्टमर नो टू यू। अभी अमेजोन है, सो अमेजोन का वेबसाइट है ना, सो अमेजोन की वेबसाइट पे आप जाओगे, गूगल पे अमेजोन करके सर्च करोगे तो अमेजोन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू शो देयर, ओके। एनीथिंग, एनी बिजनेस, if you search something about it on a Google browser, it is going to show the detail information of your system. So उसके लिए आपको पर्टिकुलर वेबसाइट डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें आपको आपके बिजनेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स को पता चले कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में पता चले, आपके पास कौन से प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पता होने चाहिए। तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपको डिजाइन करना पड़ेगा। दैट इज मस्ट हैव वेबसाइट टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर और टू कम्युनिकेट विद द पार्टनर्स, मस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो जो भी आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन है यू कैन पोस्ट इट ऑन योर वेबसाइट, सो customer can visit to your website, they can search your website on Google Chrome, so they can get the complete information about their business and it is going to helpful for your business. So जो भी business का complete information रहेगा वो आप अपडेट रखना चाहिए आपके वेबसाइट के ऊपर। अभी कौन सा भी कॉलेज का नहीं तो कौन सा भी कंपनी का अपने नाम लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पर्टिकुलर उसके नीचे उनके वेबसाइट मिलेंगे। सो उस वेबसाइट के ऊपर आप लिंक क्लिक करके जाओगे तो यू कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू सर्च, अबाउट द कॉलेज, अबाउट द कंपनीज। सो वैसा आप पर्टिकुलर आपके बिजनेस का वेबसाइट डेवलप करो, उसमें सभी इंफॉर्मेशन दे दो। सो उस इंफॉर्मेशन
उससे कस्टमर आपसे अटैच हो सकते हैं. So last one, that is a telecommunication service. So telecommunication service, it is important to communicate with the customer, partner and suppliers. So after that we have the internet facility, we are running our business, no problem. But if the customers have any kind of problem, if they want to call to a customer care of your business, so in that cases there should be a proper telecommunication channel. You should provide communication service, you should provide to your customer, so your customer can take use of it to communicate with you. Otherwise supplier can be take use of it to communicate with you. Okay, otherwise partners also they can communicate with you. So आपके बिजनेस में कम्युनिकेशन सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए. कस्टमर आपके साथ उनका कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल चाहिए. पार्टनर्स के साथ आपको कुछ बात करना है तो दे कैन टॉक विथ यू. If suppliers want to supply any information to you, so you should have a proper communication channel with you. So these are the resources required for the successful implementation of e-business. So first one, computer system, internet facility, well qualified educated staff should be there, computerized system for receiving payment, well designed website, and last one, telecommunication service. I hope you got the clear concept about what are the resources required for successful implementation of e-business. Once again I am telling that this is important question according to your exam point of view. I hope you got the clear concept about it. If you have any doubt, I will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye.